So, good evening, everyone. Myself, Akshay Dhamal. I welcome all of you on a Vakyan Mala of Swadeshi Manthan, which is organized by Swadeshi Shodh Sansthan and Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak Samiti, Mumbai. So, I welcome all of you again. Uh, I would like to give you few instructions before starting our meeting. I would request everyone except Brigadier Ji to switch off your cameras and your audios. So that will enhance the performance of the audio and video both. Yes. So now, before starting our session, I would request the Aarti Khare ma'am, who is a Sanskrit scholar, to start with Gayatri Mantra. नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Thank you, ma'am. For this session, we have all dignitaries from Swadeshi Shodh Sansthan and Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak, Mumbai, and myself, Akshay Dhamal. We also have Shri Mahesh Bakai ji. We also have Shri Prashant Deshpande ji, and dignitaries from Swatantra Veer Savarkar Samiti, Mumbai. So, I request Dr. Asawari Bapat ma'am, who is the president of Swadeshi Shodh Sansthan. She was a cultural diplomat of Bharat in first Myanmar and then in Nepal. She has her research in Sanskrit on subject of economics. So I would request Dr. Yuvraj Pardesi ji to give a detailed introduction of our speaker,
who is a Dr. Yuvraj Pardeshi ji. He is a joint secretary of Swadeshi Shodh Sansthan, Maharashtra. And Dr. Yuvraj ji, he is from Jalgaon and he holds his research degree PhD in Orthodontology. So, sir, I request you to give a brief introduction of our speaker. No, अक्षय जी, असावरी जी. जी सर. हाँ. Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So first of all, thank you, Akshay, and namaste to everyone. Our honorable speaker, Brigadier Hemant Mahajan sir, सावरकर केंद्र के सारे पदाधिकारी तथा एसएसएस के पदाधिकारी and the कैमरा का तो सारा ना होता क्या है? okay, and the entire August gathering over here. Honorable Dattopant, in his book Third Way, has expressed the necessity to develop the indigenous niti in every field. I purposefully use the word niti because general meaning of the word niti is policy. But when we think in indigenous way, then niti goes along with ethics and morals. So for Bharat, the word niti is policy definitely, but along with ethics and morals. Now, SSS Mumbai chapter will work in research in different fields. At the same time, it will focus on the Arthaniti of the city, of state, and of course of the nation. Now, I would like to explain why indigenous understanding is essential. When we say Artha, we always considered it as economic or prosperity, riches, in short, whatever is related with money. But in Sanskrit, when we think of the word Artha, it is definitely money, but it is not only money, but it indicates that which is beneficial. So whatever is beneficial is considered as Artha, or in other way, I would like to mention that earth should be beneficial to us. So the way we are earning the earth must be beneficial. Apart from that, there is another meaning of the word earth, which includes bhumi, dhanya, pashu, hiranya. First of all, it is vidya, then bhumi, dhanya, pashu, hiranya. Bhandopaskara. Bhandopaskara is whatever utensils we required at home is bhandopaskara, and mitra. See, in the list, Vidya comes first because Vidya tells us what is right and what is wrong. It takes us on the righteous way, and hence Vidya is in the beginning. And earning all these things is considered as Purushartha, human pursuit. We all know that there are 4 human pursuits: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So, earning Artha is one of the human pursuit, but it should be in a righteous way. So this is the meaning of Artha, and in modern context, we forget these meanings and we take only as money. So that is why Swadeshi Shodha is very essential. For me, I consider that SSS is sacred. Whatever research in this institution is going to take place should be sacred. It should be savvy, full of knowledge, and it should be significant. So, as a part of 3S today, the first lecture is Relevance and Importance of Indigenous Defense Manufacturing under Make in India. Sir, we all are eager to listen to you. But before that, I would like to request all those who are interested in joining SSS may kindly contact Srinivasan ji and Mahesh Bakhai ji. Over to you, Yogesh. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Yuvraj. Yes, good evening to you all. It's an honor to have Brigadier Hemant Mahajan sir with us tonight. Brigadier Mahajan sir is a highly respectable retired Indian Army officer. He joined the army in 1975 as an officer in 7th Maratha Light Infantry. He spent many years protecting India's border in very dangerous areas like Jammu and Kashmir, Punjab and Northeast. ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर इन्होंने ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम जैसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में
महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उनकी बहादुरी और बेहतरीन लीडरशिप के लिए उन्हें युद्ध सेवा मेडल, आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड और कई यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया है। उनके कमांड के तहत काम करने वाले एक ऑफिसर को देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र भी मिला है। उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज में सीनियर ऑफिसर्स को नेशनल सिक्योरिटी और वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी है। रिटायर होने के बाद भी महाजन सर ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे पुणे यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी के चेयर प्रोफेसर भी रह चुके हैं और सरकार के सिक्योरिटी एडवाइस भी रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन पाकिस्तान की कई चालों पर कई किताबें और तकरीबन 5000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। आप सबको पता है कि टीवी चैनल्स पे होने वाली डिबेट्स में महाजन सर एक जाना पहचाना चेहरा है। इसके साथ साथ जो आज की जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है और इस जेनजी जनरेशन के लिए वो इस विषय पर यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग के माध्यम से सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पहुंचाते रहते हैं। हम सबके लिए एक सम्मान की बात है कि ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सर आज हमारे में उपस्थित है और हम सब उत्सुक है कि महाजन सर से आज हमें सुरक्षा से जुड़ी कई सारी बातें हमें सीखने मिलने वाली है, जिन बातों को हमें समाज तक भी पहुंचाना है। तो इट्स ऑनर सर कि हम आपके साथ उपस्थित है और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमें सबको मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर युवराज जी। जब आपने मेरी इंट्रोडक्शन की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक महान व्यक्तिमत्व हूँ। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि कभी आपको समय मिले तो जो मेरा घर है सालुंके विहार में, आप वहाँ पे कभी जरूर आ जाइए मेरे साथ चाय का एक कप पीने के लिए। और जो अभी आपने मेरे बारे में कहा वो मेरे वाइफ के सामने कहे, ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि उसने एक बहुत महान व्यक्ति के साथ शादी की है, क्योंकि वो ऐसी सोचती नहीं है वैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका अगर बैकग्राउंड मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो मेरी क्या बोलती है टीआरपी रेटिंग मेरे घर में बढ़ जाएगी। मुझे एक 30 से 35 मिनट दिए हुए हैं इस मेरे विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए। सो आई विल यूज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। I'll just load my PowerPoint presentation. Give me a second. क्या सभी आप मेरी पहली स्लाइड देख रहे हैं? स्वदेशी शोध संस्थान स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक। हाँ, देख रहे हैं। ओके, चलो। Yes. Thank you very much. I firstly take an opportunity to thank everybody giving me an opportunity to talk in front of a very august audience, because every one of you is a very high achiever and knows a lot about national security and subjects like Make in India and all. मेरा आज का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मेक इन इंडिया। उसके ऊपर तो मैं बातचीत करूंगा ही, लेकिन जो चीज मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मेक इन इंडिया के अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर या मेक इन वर्ल्ड के अंदर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस कैसे हुई है, इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे बढ़ी हुई है, इस सब विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। क्योंकि मेक इन इंडिया ये इसमें सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। मेरा जो बातचीत का सीक्वेंस है वो मैं पहले 5 मिनट कम से कम आपको आज हमारे देश के सामने जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात करूंगा। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द नेचर ऑफ वॉरफेयर which our country is facing is changing drastically. We had first 50 years of our nation's life, we fought conventional wars of 1947, 1962, 1965, 1971 and Kargil war. और उसके बाद कारगिल 1971 के वॉर के बाद
पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन काराकोरम बोला जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में दहशतवादी और उनके समर्थक घुसाने शुरू किया और देश के अंदर गड़बड़ शुरू की। ऑपरेशन काराकोरम के 3 हिस्से थे। काराकोरम 1 यानी खालिस्तानी दहशतवाद, काराकोरम 2 यानी कि कश्मीर का दहशतवाद, काराकोरम 3 यानी कि बाकी के देश का दहशतवाद। तो ये चलता रहा। उसके बाद 2014 के अंदर हमारे देश में एक अलग सरकार आई, मोदी सरकार, जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफी प्रोएक्टिव है। तो उसके बाद ये जो दहशतवादी हल्ले थे ये बंद हो गए और एक अलग प्रकार का युद्ध शुरू हुआ, जैसे हाइब्रिड वॉर बोला जाता है वगैरह। और इसी में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। और अभी आज इस समय दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान यूएसए वॉर चल रहा है, और इन सब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। हमने किया क्या है, हमने और क्या करना चाहिए, आगे वाला रास्ता क्या होना चाहिए, ये सब विषय हम सीख सकते हैं। क्योंकि एवरी वॉर विच इज बीइंग फॉट टुडे इज अ लेबोरेटरी वेयर ऑल वेपन्स एंड इक्विपमेंट and technologies are being tested. So therefore, we have to ensure that we understand these wars and take rightful lessons from these wars. और एक चीज याद रखना कि हम मेक इन इंडिया बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी टुडे इन द वर्ल्ड इज एन ह्यूमन एलिमेंट or a soldier or a person who wants to defend his country. His fighting spirit, his leadership, his innovations, his intelligence will always win you any kind of an warfare. So therefore, ये जो ह्यूमन एलिमेंट है, हमारे सोल्जर्स है और देश के लोग, यानी कि उसमें एकेडमिशियंस है, उसमें साइंटिस्ट है, उसमें मेक इन इंडिया में हिस्सा लेने वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के यंग माइंड्स है, तो ये सभी जब काम करते हैं तो ही हमारा जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है ये आगे अच्छी तरह से बढ़ सकता है। तो थोड़ी सी हम जो फ्यूचर चैलेंजेस है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब 1 मिनट के लिए हमारा देश का नक्शा देखें, आपको नजर जाता है कि हमारी लैंड बॉर्डर्स है, हमारी समुद्र के बॉर्डर्स है, और हमारी जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बहुत अच्छी है। अभी अगर आप मेरा पॉइंटर देख रहे होंगे तो मैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मेरा पॉइंटर दिखा रहा हूं अभी। और गल्फ ऑफ हॉर्मुज के बारे में लोगों को इतना पता है कि मतलब लोग अपना घर का रास्ता भूल जाए। Sorry to object in between. Why India's map is shown incomplete, sir? क्या हो रहा है? इंडिया का मैप इनकम्प्लीट है सर, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ या आई कैन डाइजेस्ट दैट फैक्ट सर। हाँ या चेंज कर लेंगे, आपकी बात सही है। क्योंकि अकेला 1 मैन आर्मी है तो थोड़ी सी ये हो जाती है, हैंडीकैप हो जाती है। प्लीज सर, इफ यू कैन रिमूव दैट मैप इट विल बी ग्रेट, थैंक यू। हाँ या पहले मैं इसमें दिखा रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पहले समझ लीजिए। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, हमारे तीनों साइड में पानी है, तो जिससे क्या होता है कि जिससे हमें कोई भी, जैसे गल्फ ऑफ हॉर्मुज का व्यापार रोका जा रहा है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। उसके तुलना में ये जो यहाँ पे, जहाँ मैं मेरा एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ मलक्का स्ट्रेट है। इस मलक्का स्ट्रेट में से चाइना का 85% जो ट्रेड है यहाँ से जाता है। तो अगर लड़ाई जैसे सिचुएशन हो तो हम चाइना को यहाँ पे रोक सकते हैं। जब हम देश की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिसमें लैंड बॉर्डर की सुरक्षा है, समुद्र की सुरक्षा है, एयर स्पेस कमांड, साइबर सुरक्षा है, और जब हम अंतर्गत सुरक्षा की बात करते हैं जिसमें अर्बन नक्सलिज्म है, चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिज्म है, कश्मीर में जो चल रहा है उसके बारे में है, वायलेंस जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और इलीगल जो बांग्लादेशी माइग्रेशन है, ये सब चैलेंजेस आज हमारे सामने है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हर एक जगह के ऊपर, हर एक बॉर्डर के ऊपर चैलेंजेस अलग अलग है। एंड इफ यू वांट टू guard these borders properly, ensure national security, we have to ensure that we have appropriate technology, appropriate weapons to guard this. हमारी लैंड बॉर्डर्स यहाँ पे दी हुई है, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। समुद्र का जो किनारा है उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो सवाल ये पूछा जाता है कि आपके दुश्मन कौन है। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनके सपोर्टर्स जो देश के अंदर है, बाहर है, वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ लोग हैं, खालिस्तानी सपोर्टर्स है, डीप स्टेट, एनजीओ, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब अगर आप अपने ये जो शत्रु है इसको ठीक रिकॉग्नाइज करे तो
तो उनके खिलाफ किस प्रकार का शस्त्र आपने इस्तेमाल करना है, ये हम चीजें उसको हम ज्यादा अच्छी तरह से मतलब टैकल कर सकते हैं। जब पहले हमारे देश के खिलाफ जो कार्रवाई होती थी उसमें जो ये दिखाया जाता था वो था ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। ये एक आईएसआई की टैक्टिक्स होती थी, आईएसआई जो गुप्तचर संस्था है पाकिस्तान की। लेकिन अभी ये बदली हुआ है, अभी मल्टी डोमेन वॉर शुरू है जिसके अंदर वो हमारी देश की, भारत की जो प्रोग्रेस है वो रोकना चाहते हैं by using agitations, by using हिंसाचार, by using NGOs, by using activists। एक्चुअली देखा जाए तो हर एक स्लाइड के ऊपर मैं काफी बात कर सकता हूं, लेकिन समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। केवल एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स दिखा के मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो हमारे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है इसके ऊपर जो चैलेंजेस है, पहले दहशतवादी यहाँ से आते थे, अभी वो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ से स्मगलिंग होता है और आजकल खास तो नार्को टेररिज्म ये बड़ी तौर पे चल रहा है पंजाब स्टेट के अंदर और काफी और जगह के ऊपर। तो इसके ऊपर हमने नजर रखना चाहिए। भूटान बॉर्डर कंपैरेटिवली क्वाइट है, इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से स्मगलिंग होती है, यहाँ से नारकोटिक्स आता है, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स खासतौर जो मणिपुर के अंदर है वो यहाँ से आते हैं वगैरह। ये बॉर्डर गार्ड तो हो रही है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं, थोड़ा और टेक्नोलॉजी इस पर डाल सकते हैं। जब तक सवाल है बांग्लादेश का, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन इज ए वेरी ह्यूज इशू और इसके बारे में जितना बोले उतना कम ही है। जब तक सवाल है सागरी सुरक्षा का, ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट विषय है। हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारी जो एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे जो अलग अलग चीजें हमारी कोस्टलाइन के ऊपर है, हमारे कोस्टलाइन के साथ है, इसकी रक्षा करना। और हमारे जो दो द्वीप समूह है, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स जो अरेबियन समुद्र के अंदर है, इसका हमने ज्यादा पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। मैं थोड़ा सा जो अपना निकोबार आइलैंड के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो रहा है इसके बारे में 1 मिनट से बातचीत करना चाहूंगा। जब तक इंडो चाइना बॉर्डर है, ये 3 जगह पे डिवाइड है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है, ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम की बॉर्डर है, और तीसरा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। इसे और ज्यादा अच्छा गार्ड करने की जरूरत है। जब तक सवाल है चाइना का, 62 वॉर के बारे में सबको पता है, लेकिन उसके बाद जो चोला इंसिडेंट हुआ था जहां पे हमने 300 चाइनीज को मारा था, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है। सुमडोरवांगचू में हमने चाइना को किस प्रकार से काउंटर किया था, ये थोड़ा ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है। डोकलाम, गलवान वगैरह आपको पता है। गलवान में हमने 70 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था और इसकी कॉस्ट थी हमारे 20 सोल्जर्स। लेकिन अभी जो चल रहा है चाइना का वो है, इसे हाइब्रिड वॉर बोल सकते हैं, ग्रेजुअल वॉरफेयर बोल सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर बोल सकते हैं, या मल्टी डोमेन वॉरफेयर ये बोल सकते हैं। तो सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट जो 62 का हुआ था, ज्यादा उसके बारे में मैं बातचीत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मल्टी डोमेन वॉर जो चाइना लड़ रहा है इसके ऊपर मैंने 2-3 किताबें भी लिखी हुई है। तो जो हाइब्रिड वाला जो किताब है ये जरूर आपने देखना चाहिए। और ये मैं आपको एक मॉडल दिखा रहा हूं कि चाइना हमारे खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई करता है, जिसे मल्टी डोमेन वॉर से बोला जाता है। लेकिन इसमें बातचीत करने के लिए समय लगेगा। लेकिन चाइना सप्लाई चेन वॉरफेयर करता है, चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है, साइबर अटैक करता है, काफी कुछ करता है। ये नहीं है कि हम हमारा रक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस फील्ड के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अगर आप दुनिया की तरफ देखते हैं तो आज 60 जगह पे ऊपर अलग अलग प्रकार के वॉर्स है। हमें खास तो जो यूक्रेन वॉर है उसके बारे में पता है, यहाँ से बहुत सारे लेसन्स ड्रॉ करते हैं मल्टी डोमेन वॉर के लिए। और इसके सिवाय जो ईरान यूएस वॉर चल रहा है, यहाँ पे भी ड्रोन्स और मिसाइल जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी हमें सीखने की जरूरत है। और जब तक हमारी अंतर्गत सुरक्षा है, ये बीच में अंडमान का नकाशा आ गया, इसमें अगर आप देखेंगे नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां पे एक हम ट्रांसशिपमेंट हब बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने काफी सर्विस की है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर। अगर ये बनता है तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एक बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। और इसलिए कि आज का यह लेक्चर स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के माध्यम से भी है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने जब वो पोर्ट ब्लेयर में थे कार कोठड़ी के अंदर, तभी उन्होंने उस टाइम पे बताया था
कि ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, हमारे देश से 1200 किलोमीटर दूर एक फोर्ट्रेस की लाइन है, और ये एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। 4 अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर एक नॉर्थ अंडमान में है जिसे डिगलीपुर नाम से पुकारा जाता है, एक पोर्ट ब्लेयर में है, कार निकोबार में हमारा फाइटर एयरबेस है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर हमारा एक बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है। और यहीं पे जो सबसे जो ज्यादा डेवलपमेंट है वो होने वाली है। नक्सलिज्म तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन अर्बन नक्सल्स ये धोखा अभी जारी है। और जब तक नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितने भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आप देख रहे हैं, अभी वहां पे शांतता है, एक्सेप्ट मणिपुर, जहां पे जो चल रहा है, इट कैन बी कॉल्ड इंसर्जेंसी, बट इट कैन बी कॉल्ड एज मोर और लेस अ सिविल वॉर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, मैतेईज एज वेल एज कुकीज और नागा कम्युनिटीज विच आर बेस्ड ऑन द हिल्स। तो ये मणिपुर का नकाशा है। जो बीच वाला एरिया है वो मणिपुर वैली है, और आजू बाजू का जो एरिया है वो माउंटेन्स है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी और शांतता आने की जरूरत है। और बांग्लादेशी घुसखोरी ये एक बड़ा अपने आप में इश्यू है। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक फेंस हो या स्मार्ट फेंस हो या अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी ये जो बॉर्डर है, हमें इसे और सेव करने की जरूरत है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है अभी भी चलता है। और काफी सारे बांग्लादेशी अंदर है। ऑफिशियल फिगर्स जो कोट किए जाते हैं वो 2 से 3 करोड़ के आसपास है। अनऑफिशियल फिगर जो है वो 5 से 6 करोड़ के आसपास है। तो ये बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन हमारे देश में जो आके बसे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो सेफ है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा हूँ। अभी पाकिस्तान 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, और इसमें हमारा कुछ हाथ जरूर हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की तरफ से आता है, पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला कर रहा है। ट्रेडिशनली 85% ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी यूज्ड टू बी डिप्लॉयड ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। अभी 50 to 60% ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट एंटी बलूचिस्तान ऑपरेशंस इन बलूचिस्तान, इन खैबर पख्तूनवा। अभी कल परसों ही टीवी के ऊपर एक बाइट दिया था कि बलूचिस्तान के एक ग्रुप जो यूरोप में स्थित है, उन्होंने इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान डिक्लेयर किया हुआ है। उन्होंने अपना फ्लैग और करेंसी भी जगह दिखा दी थी, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी इज सफरिंग वेरी वेरी बैडली इन द इंटरनल सिचुएशन। पाकिस्तान का वायलेंस पाकिस्तान में काफी बढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जो उनके उल्टे काम जो करते रहते हैं वो करते रहेंगे। तो इसीलिए जो फाइनल सॉल्यूशन है वो पाकिस्तान प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की हुई है। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या फाटा जो बोला जाता है, शायद ये अफगानिस्तान को ज्वाइन करेगा। जो POJK है यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारे देश में आएगा, और बलूचिस्तान, सिंध वगैरह ये अलग देश बनेंगे। तो अभी मैंने आपको एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की कि हमें जो मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी के कौन से अलग अलग चैलेंजेस है। और अगर आप अभी देखेंगे तो जो दुनिया में जो आजकल वॉर्स चल रहे हैं, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर चल रहे हैं, तो जिसमें इंडस्ट्रियल कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, तो उसमें इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी देश आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, उसे आपको डेवलप करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल पावर के बारे में मैंने बात किया है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द होल नेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज कंसर्न। ये मैंने नकाशा इसलिए दिखा कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में सबको पता है, आप ऊपर देख रहे हैं, इस समय वॉर तो चल रहा है USA और ईरान के बीच में, लेकिन उसका हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर काफी असर हुआ था, लेकिन हमने उसे बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, केवल सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक सिक्योरिटी, ये सब चीजें इसमें शामिल है। और रशिया यूक्रेन वॉर से हम एक बहुत
लेसन सीख सकते हैं कि ऑल आउट वॉर कैसे होता है, इकोनॉमिक टारगेट्स को किस प्रकार से टारगेट किया जाता है। और अभी ये जो वॉर चल रहा है 4 साल से चल रहा है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे भी ज्यादा ड्यूरेशन का ये वॉर चल रहा है। एम्युनिशन है वो काफी ज्यादा खर्चा हो रही है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजराइल हमास वॉर या जो ये Sorry, there is some background noise. किसी का अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दीजिए ना एडमिन प्लीज। उसका ड्रोन्स का इम्पोर्टेंस, प्रिसीजन गाइडेड मिशन का इम्पोर्टेंस, इंडो चाइना कॉम्पिटिशन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी म्यूट कर सकते हैं लोगों को अगर कोई बीच में आ जाए तो। ओके, तो जब हम डिफेंस रिलायंस की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर 3 स्टेजेस है, बाय फ्रॉम द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो अभी हमारा जो देश है भारत, ये स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ मूव हो रहा है और काफी अच्छी तरह से मूव हो रहा है। इसका हिस्टोरिकल परसेप्शन ये है कि 47 से 91 तक हम यूएसएसआर के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे, स्टेट मोनोपोली थी। 91 और 2014 के बाद हमने कुछ मेजर इंपोर्ट्स किए, जैसे कि सुखोई विमान लिया है, T-90 टैंक लिए है, कुछ सबमरीन्स वगैरह लिए है, बट वी बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स, इनफैक्ट सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुई है वो 2014 में हुई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातचीत शुरू हो गई थी। और जब श्री मनोहर पर्रिकर जी अपने डिफेंस मिनिस्टर थे, काफी बार इस विषय के ऊपर सेमिनार्स हुए थे और इस सेमिनार्स के अंदर मुझे भी हिस्सा लेने का ऑनर मिला था। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, इसके बारे में बताया था, इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और आत्मनिर्भर भारत क्यों चाहिए, इसके अलग अलग बुलेट पॉइंट्स यहाँ दिए हुए आप देख लीजिए। कारगिल और यूक्रेन वॉर से काफी लेसन्स है जो आज भी एप्लीकेबल है, जिसमें है एक तो एम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट, जिसमें है इंडिजिनस प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट, जिसमें है कि डोमेस्टिक एम्यूनिशन बनाने की आपकी कैपेसिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। जब जब ये ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर हो जाता है, इसका मेन कारण ये है कि दोनों के पास जो मिसाइल है वो कम हो गए, फिर वो नए मिसाइल बनाते हैं, नए ड्रोन बनाते हैं और फिर लड़ाई शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, डोमेस्टिक ammunition capacity is very, very important, especially as far as drones and other things are concerned. तो ये आत्मनिर्भर भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। और इसमें क्या अच्छा काम हुआ, ड्रोन्स का काम क्या हुआ, मिसाइल्स का काम क्या हुआ, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। मैं 3 शब्दों में इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसके 3 बड़े भाग थे। पहले भाग के अंदर हमने 7-8 मई को पाकिस्तान के जो दहशतवादी ट्रेनिंग कैंप थे उसके ऊपर हमला किया मिसाइल्स और इसके मदद से, और उसे बर्बाद किया। जो भी जितने भी टेररिस्ट कैंप थे वो बर्बाद हो गए, वहां पे जितने टेररिस्ट थे वो मारे गए। उसके बाद दूसरे दिन, दूसरी रात में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से हमारे ऊपर हमला किया। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम जो मोस्टली मेक इन इंडिया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया एंड नन ऑफ द पाकिस्तानी ड्रोन्स could ever damage our military targets. तीसरे दिन, तीसरी रात को हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हमारे मिसाइल्स, हमारे ड्रोन की मदद से, और जिसमें ब्रह्मोस का काम बहुत अच्छा था। आपने शायद नूर खान एयरबेस के बारे में सुना होगा, जहां पे एक ब्रह्मोस ने हिट किया और शायद पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वहां पे स्टोर थे, शायद वो वहां पे डैमेज हो गए। पाकिस्तान ने उसके बाद सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की। तो ये कुछ वेपन्स जो है ये करेक्ट सीक्वेंस पे शायद नहीं है, ये हमारा एक सुइसाइड ड्रोन है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने हमारी कैपेसिटी दिखा दी, जिसपे ये नजर आ गया कि हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी थी ये काफी अच्छी थी। और जिन टेक्नोलॉजी ने हमें सिंदूर के अंदर मदद किया वो थे इसरो के सैटेलाइट्स, आकाश जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, और आकाश तीर ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस के बारे में तो बहुत बात हुई है, और जो हमारे यूएवी या ड्रोन्स थे इनका भी काम अच्छा रहा हुआ है। तो और इसमें इसरो का रोल काफी अच्छा रहा, उनके सैटेलाइट पे काम अच्छा किया, रियल टाइम इंटेलिजेंस वगैरह। लेकिन अभी बात इतनी ही है कि हमारे आज 6 या 7 डिफेंस सैटेलाइट्स है, चाइना के काफी ज्यादा है। तो हमारे जो दुश्मन है उनके ऊपर नजर रखने के लिए हमने और ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च करने की जरूरत है, खासतौर लो ऑर्बिट सैटेलाइट जो है, क्योंकि वहां से
पूरी चाइना के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, पूरी पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ सैटेलाइट इसरो के है, इस पे ज्यादा नंबर इंक्रीज होने की जरूरत और ज्यादा जरूरत है, और वो चल रहा है। शायद और ज्यादा बजट मिले तो ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। लेकिन बीच में इसरो या डीआरडीओ का एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, जिसके बारे में ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि अच्छी बात है कि उसमें काफी सारे इसरो के साइंटिस्ट या डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट है वो अभी इसरो और डीआरडीओ को छोड़ रहे कि वो अमेरिका में नहीं जा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो हमारे ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहां पे ज्वाइन हो रहे हैं। और इसके ऊपर एक शायद अलग अलग लोगों ने अपनी राय ये की हुई है कि भाई उनको छोड़ने नहीं देना चाहिए। सरकार ने नियम किया है कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो शायद उन्होंने आगे प्रोजेक्ट खत्म होने तक आगे उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी राय इसके ऊपर थोड़ी अलग है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी ट्रेंड साइंटिस्ट, ट्रेंड टेक्नोक्रेट की जरूरत है। तो अगर वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट को या इसरो के साइंटिस्ट को इतना चाहते हैं तो जो हम 100 साइंटिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं उससे ज्यादा हम 150-200 भी साइंटिस्ट ट्रेन कर सकते हैं, ताकि केवल इसरो ही नहीं बल्कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, इसकी जो स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है ये ज्यादा बढ़ जाएगी। काउंटर ड्रोन सिस्टम ने हमारे अच्छा काम किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम किया। ये हमारे आकाश मिसाइल है, हमारी जो इंडिजिनस ड्रोन सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया। ये जो अलग अलग प्रकार के यूएवीज है, और ये आप उसमें से कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इंडियन जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है इन्होंने इस पे काम अच्छा किया। और चाइनीज के जो ड्रोन्स थे, टर्किश जो ड्रोन्स थे, वो हमारे किसी भी मिलिट्री टारगेट के ऊपर नहीं आ पाए। तो ये हमारी सिस्टम का एक अच्छा ये था। और जो हमारे यूएवी जिन्होंने अच्छा काम किया, खासतौर तपास वगैरह, तो ये का स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस अच्छा था। ब्रह्मोस मिसाइल तो एक स्टार था, उसकी मैक 3 जो स्पीड है 400 से 500 किलोमीटर रेंज है, प्रिसीजन स्ट्राइक है। और अभी ब्रह्मोस ये अलग अलग देशों में जा रहा है। खास तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे इंडोनेशिया में, तो वहां पे भी इंडोनेशिया के अंदर भी वो ब्रह्मोस चाहते हैं। इसके पहले फिलीपींस से ब्रह्मोस लिए हुए है, इसके पहले जो अपना वियतनाम नाम का देश है उन्होंने भी ब्रह्मोस लिया हुआ है। तो ये हम चाइना को इस प्रकार से हमारा जो ब्रह्मोस की जो मिसाइल्स है उसको हम घेर रहे या काउंटर कर रहे हैं। ये एक है स्कालप नाम का मिसाइल जो हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर लॉन्च रहता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम थी इन्होंने भी अच्छा काम किया। अलग अलग प्रकार के नाम है, संयुक्ता है, हिमशक्ति है, रडार कम्युनिकेशन है। हमारे रडार को वो बंद नहीं कर पाए। हमारी कोई भी मतलब ये सोचा गया था कि शायद हमारी जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है ये डिसेबल की जाएगी, हमारी जो नेटवर्क सिस्टम है वेपन्स की इससे डिसेबल किया जाएगा, लेकिन चाइनीज वो कर नहीं पाए। हमारी साइबर सिस्टम, हमारा साइबर डिफेंस ये बहुत अच्छा था। और चाइनीज ने अपनी सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मदद की, बहुत सारी मदद की, लेकिन वो हमारी टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो हमारा जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर था, हमारा जो ड्रोन का इंटीग्रेशन था, ये काफी अच्छा था। पिनाका नाम का हमारा एक शस्त्र है, बहुत अच्छा रॉकेट है, ये भी शायद एक्सपोर्ट हो जाएगा। जो हमारा इंडस्ट्रियल इको बेस है मेक इन इंडिया के लिए, इसमें डीआरडीओ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, बीएल है, बीडीएल है, प्राइवेट सेक्टर है, डिफेंस स्टार्टअप्स है और स्मॉल एसएमईज वगैरह है। तो इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये इनका एक बड़ा अच्छा उद्देश्य है। और इस पे इनकी जो प्रोग्रेस है काफी अच्छी हो रही है। हमारी ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रहे हैं। और अभी मैं कुछ देर के बाद एक्सपोर्ट के फिगर्स के ऊपर आ जाऊंगा। हमारे एक्सपोर्ट अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लेसन हमने जो सीखा हुआ है, टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बट affordable technology is more important than high-end technology. For example, अमेरिका की जो इतने बड़े जो कैरियर बेस्ड ग्रुप्स थे और सबसे बड़ा नेवी था, वो हॉर्मुज को खुला नहीं रख सकता। और यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन के पास ना नेवी है ना एयरफोर्स है, लेकिन रशिया के पास, जिनके पास थर्ड मोस्ट पावरफुल नेवी है, थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है, इसे यूक्रेन ने डिफीट किया है क्योंकि उन्होंने ड्रोन को बहुत ही इनोवेटिवली इस्तेमाल किया हुआ है। ड्रोन वॉरफेयर
सपोर्टेड बाय AI, सपोर्टेड बाय साइबर डिफेंसेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जब तक सवाल है इकोनॉमिक टारगेट्स का, अभी दोनों देश यूएसए ईरान के इकोनॉमिक टारगेट के ऊपर हमला कर रहा है। वहाँ उनके तेल कारखाने हो, रिफाइनरीज हो या तेल स्टॉक वगैरह हो, और सिमिलरली रशिया इज टारगेटिंग यूक्रेन, यूक्रेन इज टारगेटिंग रशिया। उसमें अच्छी बात यह है कि रशिया, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ क्रूड and which has got one of the biggest refining capacities in the world, now is trying to import petrol and diesel from India. अच्छी बात है। अभी हम मतलब जो क्रूड है रशिया से ही लेंगे, रिफाइन करके रशिया को ही वापस करेंगे, अच्छी बात है। तो जब हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, वर्ल्ड में काफी जगह पे डिसरप्टिव कार्रवाई चलती है, यूक्रेन में हो, रशिया में हो या ईरान में हो, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि बाकी देशों के तुलना में वी हैव टू कन्वर्ट एन crisis into an opportunity. I repeat, you have to convert a crisis into an opportunity. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया, जिससे साफ किया, और हमने कहाँ भी किसको बेचा, यूरोप को बेचा, और यूरोप किससे लड़ रहा है, रशिया से लड़ रहा है। तो anyway, we have to be smart, we have to be we have to be taking decisions which help us to preserve our national security. तो हम ये ले रहे हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ये एक फ्यूचर का चैलेंज है। हमारे जो चैलेंजेस है मेक इन इंडिया के लिए, हम हमारा इंजन तैयार नहीं कर पा रहे हैं। खास तो LCA Mark 1 जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, तेजस का Mark 1 तो तैयार है, Mark 2 के लिए हमें इंजन चाहिए GE का, वो हमें मिल नहीं रहा है। उसके कारण मोर ऑफ पॉलिटिकल रीजन से अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारे खुद के इंजन नहीं बना पा रहे। सेमीकंडक्टर्स ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है, और इसमें बहुत सारी कार्रवाई शुरू हो गई है। वी हैव टू एंश्योर that in a short time frame of 2 to 3 years, we have to be independent as far as semiconductor technology is concerned, sensor technology is concerned. हमारी जो सप्लाई चेन है अलग अलग प्रकार की, वो एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई चेन हो या और प्रकार की, मैं वाटर सिक्योरिटी के बारे में अभी बात नहीं करूंगा। चाइना पानी कैसे रोक सकता है, हम वाटर रोक के पाकिस्तान को कैसे तंग कर सकते हैं, ये बट वी हैव टू एंश्योर दैट all our supply chains are taken care of. तो हमारी strategic implication हमारे लिए यह है कि we have to continue with the military modernization, we have to be able to fight all kinds of war, the hybrid war वगैरह वगैरह। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के जो कैपेसिटी थी, उन्होंने अच्छा काम किया, DRDOs हो या PSUs हो वगैरह। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। टाटा है, LNT है, भारत फोर्ज है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भारत फोर्ज की जो आर्टिलरी गन्स है, आज वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत फोर्ज आज एम्यूनिशन एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को। जो LNT है, लार्सन एंड टोब्रो, ये जो शिप्स बना रहे हैं अपना इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए या भारतीय तटरक्षक दल के लिए, एंड दे आर सप्लाइंग देयर शिप्स टू इंडियन कोस्ट गार्ड अहेड ऑफ शेड्यूल। हमारे जो मादगांव डॉक्स वगैरह थे वो बिहाइंड शेड्यूल काम करते थे, लेकिन ये अहेड ऑफ शेड्यूल है। तो भारत फौज अच्छा काम कर रहा है, और काफी सारे स्टार्टअप्स है, न्यू स्पेस है, राफेल ये भी इनका काम अच्छा चल रहा है। एंड ड्रोन इज द field where sky is not the limit. I repeat, drone sky is not the limit. Swarm drones है, सर्वेलेंस वाले drones है, आर्म कॉम्बैट drones है, लॉटरिंग एम्यूनिशन है। इसमें बहुत सारा काम चल रहा है, और इस पे हमें काफी यश मिल रहा है, लेकिन और आगे ज्यादा प्रोग्रेस करने की जरूरत है। मैं जब बोलता हूं कि और ज्यादा आगे जाने की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है, और कितना आगे जाना है? मतलब कम से कम हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड मेक इन इंडिया में और क्या होना चाहिए? तो इसका शॉर्ट सिंपल स्ट्रेट आंसर यह है कि हमने चाइना से एक कदम आगे रखना चाहिए। हर एक फील्ड में जो चाइना की एफिशिएंसी है, उससे हमने एक कदम आगे रखना चाहिए। दिस शुड बी द एम ऑफ और मेक इन इंडिया। जब तक डिफेंस प्रोडक्शन का सवाल है, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2026 तक कितना फर्क पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे 46,000 करोड़ से लेकर आज 1.78 लाख करोड़ जो है हमारा डिफेंस प्रोडक्शन ये बना हुआ है। और डिफेंस एक्सपोर्ट की जब तक बात करें, तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। या आज अभी 2025-26 में 38
1424 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट हुए हैं। हम अभी टॉप 20 जो डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इसमें आए हुए हैं, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आ जाए। डिफेंस कॉरिडोर्स आर डूइंग वेल इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स होते हैं साथ साथ होने चाहिए, और एमएसएमई का जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा होना चाहिए। पॉलिसी रिफॉर्म्स काफी अच्छे हुए हैं। उसके लिए जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी जिसे डीपीपी बोला जाता है, इसमें मनोहर पर्रिकर जी का हमने मतलब बहुत ही उनको प्रेस करना चाहिए। और उसके बाद अभी भी जो हमारी पॉलिसी चल रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के, ये काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, और जिसमें हमने बहुत सारे इलाके में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी हुई है। मेक इन इंडिया 2, बाय इंडिया, बिल्ड इंडिया वगैरह। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोर एंड मोर of our arms, ammunition, technologies, supporting systems are being made in India. मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले 70% of our equipment was being purchased from abroad, especially from USSR, अभी का रशिया, अमेरिका, इजराइल वगैरह। और हमारी almost 25-30% of the ammunition, especially the high-end ammunition, was being purchased from abroad. और उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब जरूरत पड़ती थी तो वो रोकी जाती थी। और ये प्रॉब्लम हमने कारगिल वॉर के समय देखा कि हमारे पास एम्यूनिशन की, आर्टिलरी की जो एम्यूनिशन थी उसकी शॉर्टेज हो गई थी। हमने लाने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसा देना पड़ा कुछ कंट्रीज को। लेकिन अभी हमारा ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 65% जो सामान है देश में बन रहा है। स्पेशली क्रिटिकल चीजें जो है वो देश में बन रही है। 100% जो एम्यूनिशन है वो देश में बन रहा है, और हम एक्सपोर्ट भी चीजें कर रहे हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। और हमारा अगर आप टैंक 100 करोड़ के लिए समझ लो खरीदते हो, और अगर आपने 100 टैंक एक्सपोर्ट किए तो जो आपके टैंक है उसकी भी कीमत कम हो जाती है। एंड ऑल योर वेपन्स, all your technologies, all your support systems must be tested in different countries under war-like situation कि जो अभी हो रहा है। तो तेजस हमारी एक सक्सेस स्टोरी है, कुछ हद तक नहीं है। विक्रांत हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के अभी दिन बचे नहीं है। ब्रह्मोस इज अ बिग सक्सेस स्टोरी, जिसके बारे में जितना बोले उतना कम ही है। आकाश जो मिसाइल है ये भी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसके बाद पिनाका है, आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी जो है, खासतौर सर्वेलेंस लॉजिस्टिक्स की, ये बहुत अच्छी बात है। स्वॉर्म ऑपरेशंस वगैरह जो है ये अच्छी बात है। तो ये हमारी सक्सेस स्टोरीज है। और ऑपरेशन सिंदूर के जो मेजर टेकअवेज थे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। Especially we are going in for what is called as Akash Tir, which is going to ensure that all your economic targets are also taken care of. क्योंकि अगर आप देख रहे हैं पहले के जो पारंपरिक युद्ध हुए थे इसमें only military targets were tackled. Nobody ever touched the economic target. But now Russia and Ukraine are firing on each other's cities, firing on each other's electricity grids, firing on each other's refineries. तो ये इसलिए हमारी जो रिफाइनरीज है उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए खास तो। और उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, एक ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की एक सिस्टम हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस की थी 26 जनवरी के लास्ट में कि अगले 4 या 5 साल के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक हमारे इंस्टॉलेशंस है, खास तो रिफाइनरीज है, खास तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और कुछ जिनके बारे में बात मैं नहीं करना चाहूंगा, इट मस्ट हैव अ कवर अगेंस्ट ड्रोन वॉरफेयर। और प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके ऊपर काफी सारा फर्क पड़ रहा है। अभी हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिलीपींस है, आर्मेनिया है, मॉरिशियस है, साउथ ईस्ट एशिया के देश है। मोर देन 100 कंट्रीज वी आर एक्सपोर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन। तो इससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अभी आर्मेनिया को जब हम चीजें बेचते हैं तो हम एक टर्की को, तुर्कस्तान को एक इशारा दे रहे हैं कि भाई बी केयरफुल, इफ यू कैन हेल्प पाकिस्तान वी कैन हेल्प आर्मेनिया हु इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू। सो ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के लिए अच्छा है। चाइना का जो डिफेंस
ट्रांसफॉर्मेशन है ये अपने आप में एक अभ्यास का विषय है। आप रिसर्च करते हैं तो चाइना और इजराइल ये दो अलग अलग मॉडल्स है अपने अपने देश में इक्विपमेंट बनाने के। इसमें से जो बेस्ट चीजें हैं ये हमने बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है वो लेने चाहिए। चाइना की जो 2-3 बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो ये है कि एक तो वो उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये बहुत ही ह्यूज है। दूसरा उनकी जो सिविल मिलिट्री जो फ्यूजन है ये बहुत ही अच्छी है। हर एक टेक्नोलॉजी वो सिविल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मिलिट्री यूज के लिए भी करते हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। और चाइनीज के जो वर्कर्स है सेमी स्किल्ड है, फुल्ली स्किल्ड है, ये उनकी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छी है। जब तक इजराइल है, इजराइल से एक सीखने वाली बात यह है कि उनके इनोवेशंस बहुत ही तगड़े हैं। इनोवेशंस मे बी इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस, मे बी इन द फील्ड ऑफ ड्रोन्स, मे बी इन द फील्ड ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, बहुत ही वो वर्ल्ड क्लास है। उनकी स्टार्टअप सिस्टम भी बहुत अच्छी है। लड़ाई चल रही है, लड़ाई के चलने के दौरान वो रिसर्च करके वो नया वेपन बनाते हैं जिससे उनके जो दुश्मन है, अभी उनके दुश्मन हमास पूरा बर्बाद किया है, हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट 90% आर आउट नाउ, एंड जो तीसरे है हुथीज उनकी भी हवा निकल गई है। लेकिन innovation is a big strength of Israel. This is what we have to learn, and this is maybe have to be picked up by our startups, etc. जो emerging technologies जिसके ऊपर मेक इन इंडिया ने और काम करने की जरूरत है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर AI मिशन हमारा शुरू हुआ है, अच्छी तरह से बढ़ रहा है। हमारे जो एक मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इफ आई टेक द नेम करेक्टली, उन्होंने इसके बारे में अच्छी बात की थी। I hope we are able to make adequate progress in this mission. Quantum computing of ours is doing a good job. With quantum computing, our cyber networks have become more stronger. Autonomous delivery system जो है ये एक इतना ज्यादा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी वाला विषय है कि इसके ऊपर जितना काम करे उतना कमी है। आपने रोबोट्स के बारे में सुना होगा, कल परसों एक टीवी पे आ रहा था कि जो यूक्रेन के रोबोट्स है, यंत्र मानव जो है, दे वर नॉट अलाउइंग रशियन सोल्जर्स। ये बताया गया था कि रशियन सोल्जर जो रणभूमि पे आ जाता है उसका लाइफ 20 से 30 आवर्स भी नहीं है। ये शायद ज्यादा प्रोपेगेंडा है, लेकिन फैक्ट इज दिस कि दे आर यूजिंग the autonomous systems, be it underwater, be it over water, in a very effective way. और उनका स्पेस वॉरफेयर में उनको बहुत मदद मिल रही है अमेरिका से। जो मेजर चैलेंजेस हमारे सामने है वो है इंजन्स। हम हमारा इंजन नहीं बना पा रहे, सेमी कंडक्टर्स, एरो इंजन टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर, R&D एक्सपेंडिचर वगैरह ये हमने बढ़ाना चाहिए। ये जो अभी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें जो हमने जो अलग अलग लेसन हमने सीखे ड्रोन वॉर से, यूक्रेन वॉर से, तो हमने हमारी जो मेक इन इंडिया में काफी सारा फर्क किया हुआ है। अभी तो वी आर गोइंग इन फॉर प्रिसीजन गाइडेड एम्युनिशन, स्पेशली द शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। इसमें अग्नि प्राइम बहुत अच्छा काम चल रहा है। निर्भय क्रूज मिसाइल मोर और लेस इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। प्रलय जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी तैयार है। पृथ्वी धनुष, इनका हमने रेंज थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड हाइपरसोनिक वेपन्स आर गोइंग टू बी यूज्ड, आर बीइंग यूज्ड बाय रशिया इन द यूक्रेन वॉर। कैमिकाजे ड्रोन्स या सुसाइड ड्रोन्स जो है हमारे अच्छे तैयार हो रहे हैं, और इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान के कोई भी जो टारगेट है हम उसे अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। और जो टारगेट्स चाइना के तिब्बत के अंदर है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मेनलैंड चाइना के ऊपर रीच करने के लिए अभी हमें और समय लगेगा। तो हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए 2047 के लिए? We have to reach into top 5 defense exporters. We have to indigenous technology जो 3-4 फील्ड में है उसमें ये हमारा जो चीज है वो improve करना चाहिए। तो defense self reliance is equal to national sovereignty. A nation that cannot design, manufacture and maintain and upgrade its own military cannot achieve a strategic autonomy and cannot protect its national interest. So the battle for strategic autonomy is begun. Now we have to ensure that we become टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंस। अभी मैंने ह्यूमन एलिमेंट ऑफ बार के बारे में बात की थी। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है कि वो
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सबोटाज सबवर्शन हमारे देश में करती है। ये हमारा एक अलग ही विषय है, इसे अर्बन नक्सल्स वगैरह बोला जाता है, तो इनसे कैसे टैकल किया जाए ये एक अपना अलग अलग विषय है। लेकिन मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी की बात हुई, इंडस्ट्री की बात हुई, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट, अ सोल्जर, अ साइंटिस्ट, अ इंडस्ट्रियलिस्ट, MSCB का जो बॉस है वो, academicians, these are all are very very important people. Just by having one powerful leadership or one end technology doesn't help. अभी जैसे कि आपके पास ड्रोन है, लेकिन ड्रोन का इनोवेटिव यूज जो यूक्रेन कर रहा है, ये तो अपने आप में एक केस स्टडी है। तो केवल टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं होता, टेक्नोलॉजी को इनोवेटिवली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और वो सोल्जर्स करते हैं, वो लड़ने वाले करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और ये ह्यूमन एलिमेंट या सोल्जर्स या कॉमन इंडियन, ये इसको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए? आज हमारे देश में हम सरकार से हर एक चीज चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये फ्री चाहिए, वो फ्री चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आपका जो मोटो है, ये जो इंडियन आर्मी का जो मोटो है, हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी लिखा हुआ, वो होना चाहिए, सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट, एंड योर ओन ईज कंफर्ट एंड सेफ्टी कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मैं देश के लिए रोज के जीवन में क्या कर सकता हूँ, ये हमारे सामने हमारा एक ध्येय होना चाहिए। तो अगर आपने मेक इन इंडिया में प्रोग्रेस करना है, आत्मनिर्भर भारत में प्रोग्रेस करना है, मेक इन वर्ल्ड के लिए जाना है, तो आपको लड़ाइयाँ किस प्रकार से लड़ी जाती है, आजकल की लड़ाइयाँ, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है, कौन से वेपन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हम कहाँ पर है, दुनिया कहाँ पर पहुंची है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसकी कीमत कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेक इन इंडिया के लिए, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसमें ये मेरी लास्ट स्लाइड है, बिफोर एनीबडी ट्राइज टू स्टॉप मी लाइक अर्नब गोस्वामी, कि ये पंचतंत्र का ये कोटेशन है, ऑफ ऑल द गिफ्ट दैट अ किंग कैन गिव, इट इज नॉट द गिफ्ट ऑफ गोल्ड, नॉट द गिफ्ट ऑफ लैंड, नॉट द गिफ्ट ऑफ काउज विच इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स द गिफ्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपका देश सिक्योर है तो देश की प्रगति ये बहुत अच्छी होती है। आज अमेरिका सिक्योर नहीं है, आज यूरोप सिक्योर नहीं है, उसकी तुलना में हमारा देश ज्यादा सिक्योर है। तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो मल्टीनेशनल की है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की है, शायद हमारे देश में आ सकती है। और मुझे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत प्यार है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। कारण ये है कि ही इज गोइंग टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। बहुत सारे जो इंडियंस, ब्राइट इंडियंस जो थे, जो अमेरिका में जाके जिन्होंने अमेरिका को ग्रेट किया था, शायद वो वापस आएंगे। अभी जस्ट सोचिए कि अगर आपका जो नेक्स्ट कोई ऑनलाइन लेक्चर होता है, उसके लिए अगर सुंदर पिचाई हाजिर होते हैं या सत्य नाडेला होते हैं और हमारे लेक्चर सुनते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तो आई एम श्योर द ब्राइट इंडियंस स्टेइंग इन अमेरिका, इन यूरोप will come back and will help you to make India great again, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास बनेगी। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ, और अभी पूछना है, कुछ मेरे से बातचीत करनी है, तो अगर ऑर्गेनाइजर्स या MC बताते हैं तो हम थोड़ी सी इंटरेक्शन जो है ये कर सकते हैं। मैंने आपको एक्चुअली बहुत ही मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, हर एक जो स्लाइड है इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हो सकती है, बट आई ओनली ट्राई टू एक्सपोज यू बिकॉज ऑल ऑफ यू आर experts in your respective fields and you do have a lot of background knowledge, so therefore there is no need to explain every bullet point which is given on the slide, but I just gave you a broad understanding as to what where Make in India is today, how did it start, what the progress it is made, where it's expected to go now, and what we can do in the future. So I am now open to questions if there are any. नमस्कार, मैं प्रशांत नागवेकर। सिंदूर वार हमने 3-4 दिन चालू रखा, लेकिन उसके बाद तुरंत बंद करना पड़ा। उसका रीजन समझ में आ सकता है क्या? ओके, मैं आपने सवाल पूछा कि सिंदूर अचानक बंद करना पड़ा, उसका विचार ये था। एक्चुअली क्या हुआ कि आजकल सोशल मीडिया का इतना सारा यह है कि हर एक विषय के ऊपर अपने विचार होते हैं, जो कि खराब नहीं है, अच्छा विचार होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में चल रहा था कि इतना अच्छा चल रहा था, IPL मैच से ज्यादा अच्छा था, अचानक बंद कर दिया। हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी POK कैसे कैप्चर किया जाए, वगैरह वगैरह। देखिए, ऐसे होता है कि जब आप किसी लड़ाई के लिए जाते, सिंदूरीय लड़ाई थी, लड़ाई में 2 चीजें होती है। एक तो होता है कि लड़ाई में आप किसके लिए जा रहे हैं, आपका वॉर एम क्या है।
हमारा वॉर एम इस लड़ाई में था कि जो दहशतवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तान के अंदर, इससे बर्बाद करना। हमें 12 दहशतवादी ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी थी, मतलब उस समय जब ये प्लान हुआ था, तो उसके ऊपर हमने हमला किया, उनको बर्बाद कर दिया। जो दहशतवादी वहां पे थे वो मारे गए, जो वहां पे नहीं थे ऑब्वियसली वो मारे नहीं जाएंगे। और इसी समय क्या हुआ था कि मैंने एक पासिंग में मेंशन किया, जब हमारे ब्रह्मोस ने हमला किया तो नेक्स्ट टू रावलपिंडी तब एयरफील्ड कॉल्ड नूर खान एयरबेस, नूर खान वॉज द एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो वहां पे हमारा ब्रह्मोस फायर हुआ उनके सपोर्टिंग फैसिलिटीज के ऊपर, और वहां पे शायद जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे प्लेस थे वो डैमेज हो गए, और वहां से रेडियो एक्टिव लीक होना शुरू हो गया। वो न्यूक्लियर वेपन डजंट एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब, बट रेडियो एक्टिव लीक शुरू होना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो अपना यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, उससे वो देखना चाहिए था कि ये क्या उसका क्या वहां पे हालात है। तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई आप हमें प्लीज अलाउ अस to let us have a ceasefire और so that we can have a look at our this thing। तो इसलिए हमने ceasefire के लिए एग्री किया। इसे बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई कब खत्म की जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और हमने लड़ाई सही वक्त शुरू की, सही वक्त बंद की। अभी देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है, उसने पूरी ईरान को स्टोनेज में भेज दिया है क्या, लेकिन अमेरिका के अंदर भी वो नहीं सोचते कि उन्होंने लड़ाई जीती हुई है। Israel is a very good country, but even after fighting a war for nearly 3-4 years, they have not been able to convince their own people that they have destroyed Hamas, destroyed Hezbollah, destroyed ये। तो मतलब इजराइल ने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी they do not know where to stop। अभी रशिया का जो पुतिन है उसका भी वही हाल है। So Israel, frankly speaking, has made a fool of itself by not understanding when to finish the conflict. The same thing has happened to Putin of Russia. Same thing has happened to America, and same thing has happened to Iran also. We have done a very good job of conflict termination. It is very, very important when to stop and what is your war aim. Complete destruction of enemy these days is not possible। ये जमाना चला गया सेकंड वर्ल्ड वॉर का या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, कि जब पूरे देश बर्बाद हो जाते थे और वहां पे नया ये शुरू हो जाता, वो जमाना भी रहा नहीं है। क्योंकि जहां पे अमेरिका आ जाता है, एक साइड में समझ लीजिए अभी अमेरिका आ गया है, ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान को मदद कौन कर रहा है? रशिया, क्योंकि वो रशिया और चाइना, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका वहां फंस जाए। अभी रशिया लड़ रहा है यूक्रेन के अंदर, वहां पे यूक्रेन को मदद कौन कर रहा है? अमेरिका, क्योंकि वो चाहते हैं रशिया वहां पे फंस जाए। तो इसलिए ये देश, पूरी दुनिया जो है 2-3 हिस्सों में बटी हुई है, और हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। अगर आपने मेरी किताब जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर है, ये पढ़ी नहीं होगी, लेकिन इसलिए कि आपने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का इस्तेमाल किया, इनके लिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर की जो किताब लिखी है वो वहां पे अवेलेबल है, इसे जरूर देखिए। उसमें मैंने बोला है कि हमारी जो लड़ाई है ये केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चाइना के खिलाफ भी है, और पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करने वाले 30-40 और देश है, तुर्कस्तान है, सऊदी अरेबिया वगैरह, उनके खिलाफ भी है, और उनके जो हस्तक या एजेंट्स जो भारत के अंदर है उनके खिलाफ भी है। और दिस इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिस्ट्रॉय आवर एनिमी। वी हैव टू बी रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो ये फिर चालू रहेगा। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर नहीं हो रही है। आप क्या सोचते हो कि एलओसी क्वाइट है? आप क्या सोचते हो कि बलूचिस्तान क्वाइट है? आप क्या सोचते हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्वाइट है? तो चल रहा है, सिर्फ उसका जो स्वरूप है अलग है। हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजों के बारे में आप बोल नहीं सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई कैन टेल यू हेल ऑफ अ लॉट, बट आई डोंट वांट टू अपीयर एज इफ आई नो एवरीथिंग, एंड एटलीस्ट फ्यू थिंग्स शुड बी लेफ्ट टू इमेजिनेशन। ये देखिए, सिंपल बात है कि आज पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 2,500 सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड एवरी ईयर। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल नाम का एक पोर्टल है, वहां पे देखिए, पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वहां पे पढ़िए कि उनके बलूचिस्तान में क्या हाल है, उनका पाकिस्तान के कश्मीर में क्या हाल है, उनका खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, उनके जो अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा जिसे ड्यूरल लाइन बोला जाता है, वहां पे क्या हाल है, आप देखिए वहां पे।
काफी कुछ चीजें हो रही है. यू डोंट हैव टू फाइट द कन्वेंशनल वे, देयर इज अनकन्वेंशनल वे. इसलिए मैंने इस्तेमाल किया था कि वॉरफेयर, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है आपने केवल टैंक नहीं बनाने हैं, आपने एयरक्राफ्ट नहीं बनाने, बल्कि आपने एयरक्राफ्ट बनाने ही नहीं है, बल्कि आपने टैंक बनाने नहीं है, आपने ड्रोन बनाने हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है, आपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है, आपने स्मार्ट फेंसेस बनाने हैं, आपने अपना सर्विलेंस इंप्रूव करना है. नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग एंड वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली. I hope I have replied partly to your question. या थैंक यू. धन्यवाद. हमारे भारत के इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत कंडीशन खराब है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? ये आपने सवाल पूछा कि इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सवाल है आपका? यस यस यस. अच्छा, ओके. नहीं, क्या होता है कि जब हम किसी भी इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा हम दुश्मन को ज्यादा बोलते हैं कि दुश्मन ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. ठीक है. अभी कश्मीर, अभी देखिए 4 बड़े इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज है. एक तो है कश्मीर में टेररिज्म इज मोर और लेस डेड. वहां पे दहशतवाद कोई नहीं है. कश्मीर की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और वहां पे जो टूरिस्ट है 2.5 करोड़ है. तो कश्मीर में टेररिज्म खत्म नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान है, लेकिन वायलेंस इज एट ऑल टाइम लो. जब तक नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे मिजोरम में शांतता है, नागालैंड में शांतता है, मणिपुर में जो थोड़ी बहुत चीजें चल रही है, इट इज मोर लाइक अ सिविल वॉर बिटवीन द मैतेइज एंड द कुकीज. इट इज गॉट नथिंग टू डू विथ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. जब तक सवाल है नक्सलिज्म, बाय एंड लार्ज अमित शाह जी ने बताया है कि ये खत्म हो गया है. शायद जंगल का नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन जो अर्बन नक्सल्स है ये नहीं हुआ है. तो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है, एनजीओज, कुछ रेडिकलाइज एनजीओज है, कुछ जिहादी प्रवृत्ति के है, कुछ लेफ्टिस्ट सोचने वाले हैं, कुछ एंटी डेवलपमेंट है, उनको कैसे कंट्रोल करना है. अभी के जो हमारे दुश्मन है, और कुछ एनजीओज हमारे दुश्मन है, कुछ एक्टिविस्ट हमारे दुश्मन है. हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो है सैबोटाज और सबवर्शन का. तो इसके लिए मैंने एक सेकंड लास्ट में स्लाइड जरूर दिखाई थी कि सबवर्शन ऑफ पीपल, सैबोटाज वगैरह. तो इसमें आप में एक ह्यूमन बीइंग जो देश के बारे में उल्टा बात करता है, इसे कैसे इंप्रूव किया जाए, इसे कॉग्निटिव वॉरफेयर बोलते हैं. अब किसी का दिल बदली करना है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स एंड चेंजिंग द माइंड्स, ये अपने आप में एक अलग साइंस है. कॉग्निटिव वॉरफेयर की अगर आपने कुछ बातचीत करनी है तो कभी हम कर सकते हैं. कॉग्निटिव वॉरफेयर इतिहास में एक बार सक्सेसफुल हुआ था, जब रशिया के जो प्रेसिडेंट थे गोर्बाचेव, उन्होंने सोचना शुरू किया कि रशिया के लिए, यूएसएसआर के लिए फिलोसॉफी होनी चाहिए ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका, जिससे यूएसएसआर कायम का बर्बाद हो गया. तो उन्होंने सोचा था. और कॉग्निटिव वॉरफेयर एक अपने आप में विषय है, लेकिन इट्स साइंस विच इज गोइंग ऑन. बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन जो सबवर्टेड हमारे लोग हैं वो उनको कंट्रोल करना एक अपना विषय है. जो फॉरेन मीडिया है अपने आप में उनको कंट्रोल करना विषय है. लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि हम सब पढ़े लिखे हैं, बट वी शुड ऑल बी इंफॉर्मेशन वॉरियर्स. यानी कि अगर देश के बारे में कोई गलत चीज बताई जाती है, वो न्यूज़पेपर में हो या टीवी चैनल्स के ऊपर हो या सोशल मीडिया के ऊपर हो, उसे जरूर कंट्रोल करना चाहिए. मैं आपको बताता हूं कि आप अभी, इसलिए कि मैं पूना में हूं, मैं मराठी में 4-5 आर्टिकल्स लिखता हूं मराठी न्यूज़पेपर के लिए. इतने सारे यूट्यूब चैनल्स है, इतनी उल्टी सुल्टी बात करते हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? करना चाहिए. अगर देश के खिलाफ का आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ काफी चीजें हैं. वी हैव टू कंट्रोल द सोशल मीडिया आल्सो, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सबवर्शन. बीट यूट्यूब, बीट फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर काफी जगह पे पॉइजन किया जाता है. और ये जो प्राइवेट नेट्स है, इसके ऊपर सर्वेलेंस कैसे रखना, ये अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा विषय है. ये मत समझिए कि सर्वेलेंस अभी नहीं रखा जा रहा है, सर्वेलेंस रखा जा रहा है. शायद आपने सुना होगा कि 2025 के अंदर we caught hold of about 94 terrorists who were caught before they committed a terrorist act. Because क्या हुआ, उनका सोशल प्रोफाइल चेक किया गया, उनके ऊपर इंटरनेट के ऊपर नजर रखी गई, and after about 4-5 months of surveillance they were caught, and they were caught before they could do any damage to our country. तो हम कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है. सिचुएशन इतनी खराब नहीं है. पाकिस्तान की सिचुएशन हमारे से ज्यादा खराब है. चाइना की सिचुएशन हमारे से बहुत ज्यादा खराब है. चाइना स्पेंड्स
4 times more money on internal security budget than on external security. यानी कि मतलब क्या है, मैंने बोला कि हमारे दुश्मन कौन है, मैंने बोला हमारे दुश्मन है चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कुछ देश जो हमारे खिलाफ कार्य करते हैं, तुर्कस्तान है, सऊदी अरेबिया है, और उनके जो हस्तक हमारे खिलाफ है। चाइना का नंबर 1 दुश्मन कौन है? चाइनीज पीपल। सबसे ज्यादा नंबर 1 चाइना में जो कोई भी सक्सीड हो जाता है, शी जिनपिंग क्या करते हैं, उनको गायब कर देते हैं। ये इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट चाइना's enemy number 1 is Chinese people, और चाइना का the biggest problem of China is Xi Jinping, बट उसके बारे में कभी और बात होगी। तो देखिए, कंपैरेटिव मेरिट होता है। एनर्जी सिक्योरिटी में हमारे जो 7 रुपए से डीजल का भाव या पेट्रोल का भाव बढ़ा है, पाकिस्तान का 3 गुना बढ़ा है, चाइना का बढ़ा है, अमेरिका का बढ़ा है। तो इन द कंपैरेटिव मेरिट वी हैव डन अ गुड जॉब। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन नए नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहा है, जिसमें एक चैलेंज है नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स जो समुद्र से आ रहा है वगैरह। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कैसे? तो सागरी सुरक्षा ये अपना एक अलग विषय है। ये जो स्वतंत्र वीर सावरकर संस्थान है, उसके लिए मैंने सागरी सुरक्षा के ऊपर किताब लिखा हुआ है। मराठी में सागरी सुरक्षा पर कोई किताब नहीं है। मेरी जो ऑफ सिंदूर की किताब है, मैं उसको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज ओनली मेंट फॉर गिफ्टिंग एज फार सावरकर स्मारक इज कंसर्न। वो आप जरूर देखिए। वहां पे ऑपरेशन सिंदूर में 6 चैप्टर्स है और विषय के ऊपर कि जो बैकग्राउंड में था ऑपरेशन सिंदूर के, उसमें स्पेस वॉरफेयर कैसे हुआ, उसमें ये कैसे हुआ वगैरह। काम हमारा अच्छा चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड एज आई सेड, द मिनिमम एम which we should achieve in the next 5 to 10 years is we should be ahead of China in all respects. Yeah, any other question? I hope बांग्लादेश जो हमें एक्सटीरियर हेल्प से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो कितना % वो अचीव कर सकता है? प्रसन्न जी, आपने एक प्रश्न पूछ लिया, अभी अन्य को मौका दीजिए। ओके, मैं आपको मैं प्रश्न पूछूं? हाँ सुनिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, ये ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर कोई सवाल तो सबके दिल में आ जाते हैं, लेकिन आपके नीचे वो चैट बॉक्स है। अगर आप चैट बॉक्स में सवाल लिख के भेजेंगे तो मैं 2 मिनट में आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन करेंगे और बात करेंगे तो उसमें समय निकल जाता है। जी जी। तो इसलिए चैट बॉक्स, जो जिसको मन में कोई भी पूछना है पूछिए। आई डोंट क्लेम दैट आई हैव आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज, बट आई कैन आंसर मोस्ट ऑफ इट इफ नॉट ऑल। ठीक है, तो अभी आप पूछिए। बांग्लादेश के बारे में कोई पूछ रहा था सर, मैं पूछूं? अच्छा सुनो, एक सुशील जी ने एक सवाल पूछा है, अग्निवीर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, ये अग्निवीर पहले क्या होता था कि हमारे जो सोल्जर्स थे 18 साल के ऊपर उनकी भर्ती होती थी, और 16-17 साल के सर्विस के बाद उनको रिटायर किया जाता था, क्योंकि आर्मी को यंग रखना है। आर्मी इज ऑपरेटिंग इन वेरी टफ एनवायरनमेंट। तो 35-36 ईयर्स पे वो रिटायर हो जाते थे और उनको बाद में पेंशन मिलता था। एंड दिस पेंशन यूज्ड टू, ऑन एन एवरेज इंडियन सोल्जर यूज्ड टू लिव टिल द एज ऑफ 75, 80, 85। तो 15 साल की आपने सर्विस की और अगले 40 साल आपने पेंशन लिया, तो इकोनॉमिकली इट वाज वेरी अनवायबल, यू नो। और आपको ये पता होना चाहिए, अग्निवीर नाम का, अभी अग्निवीर तो बहुत फेमस हो गया है, इसके पहले अग्निवीर पहले ही था। आपको पता होना चाहिए 70 अग्निवीर का मतलब क्या है कि पार्ट टाइम सोल्जर्स, कि वो पूरा उनको पेंशन शायद नहीं मिला, पेंशन मिलेगा अगर वो 15 साल की सर्विस पूरा करते हैं। तो आजकल पार्ट टाइम सोल्जरिंग ये कल्पना अमेरिका में है, जिसको कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, इजराइल में है, रशिया में, चाइना में है, चाइना के अंदर है। और जब तक हमारा सवाल है, हमारे 71 के पहले हमारे सोल्जर 60 साल सर्विस करते थे, उसके बाद उनको पेंशन। मैं अभी आर्म फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, खासतौर आर्मी के बारे में, क्योंकि इंडियन आर्मी भी सफर्ड वेरी हेवी कैजुअलिटीज इन ऑल द वॉर्स। तो 60 साल सोल्जरिंग करने के बाद ये सोल्जर रिटायर होते थे और उनको पेंशन नहीं मिलती थी। तो जो पेंशन मिलना जो शुरू हुआ 1974 में, इंदिरा गांधी बहुत खुश थी कि भाई हमने 71 का वॉर जीता, और जनरल रैनाते भी चीफ थे। तब उन्होंने बोला कि 7 इयर्स सर्विस और 8 इयर्स रिजर्व, तो उसकी जगह पे उनको 15 साल सर्विस करने दो और उनको पेंशन दे दो। लेकिन पेंशन का बिल इतना ज्यादा हो गया है कि वो अनअफोर्डेबल है। शिवाजी महाराज के टाइम पे अग्निवीर थे, पेशवा के टाइम पे अग्निवीर थे, और वो अच्छे लड़ते थे। तो अग्निवीर ये नेसेसिटी है, लेकिन इसका एक फायदा, बहुत बड़ा फायदा यह है
कि अग्निवीर आर गोइंग टू गिव यू अ रिजर्व मैन पावर। अगर आप देखेंगे, आज हमने थोड़ी सी बात यूक्रेन के बारे में की, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में की। रशिया को लड़ने के लिए सोल्जर्स नहीं मिल रहे हैं जी, ठीक है ना। सिमिलरली वही हाल हो रहा है इसका क्या नाम है, चाइना का जो कॉन्स्क्रिप्शन है, चाइना का कोई भी सोल्जर तिब्बत में नहीं आना चाहता या इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर नहीं आना चाहता है। तो क्योंकि जो सिटीज में रहते हैं, वो जो पार्ट टाइम सोल्जर के लिए आते हैं, वो बाद में सॉफ्ट बन जाते हैं वगैरह। तो अग्निवीर इज फॉर इकोनॉमिक रीजंस, दैट इज वन, बट इट डज क्रिएट अ रिजर्व। और दूसरी बात यह है कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्टडी किया जाएगा, इसके फायदे क्या हुए, क्योंकि कोई भी जब आप रिफॉर्म करते हैं, उस पर कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अगर फायदा ज्यादा है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नुकसान ज्यादा है तो आपको उस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो मतलब विचार चल रहा है, और अभी जो 25% अग्निवीर को लेना था शायद बढ़ेगा। There are enough number of experts available. You don't have to worry about the organizational part of the Indian Army. That Indian Army is more than capable of taking care of it. There will always be some veterans, some retired army people. वो सोचते हैं कि जो मेरे टाइम पे होता था वही पूर्व दिशा है, नहीं। ठीक है, ओके। तो ये अग्निवीर नेसेसिटी है। देखेंगे बाद में आपकी इकोनॉमी बढ़ जाए, अगर आप नंबर 1 इकोनॉमी बढ़े तो फिर आप शायद अग्निवीर को छोड़ के फिर 15 साल की सर्विस शुरू कर सकते हो। 5-6 साल अगर आप अच्छा हार्डवर्क करिए और इनोवेटिव, बीट द हेल आउट ऑफ सुंदर पिचाई एंड सत्य नाडेला एंड मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 to 6 years, यू विल हैव अग्निवीर गोइंग बैक। ओके, मैंने आपको आंसर दिया है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ सवाल जरूर आए हैं, मैं एक बार देख लूँ। इसके अंदर है शायद, कहाँ है ये चैट बॉक्स, कहाँ चला गया यहाँ मेरा? एक मिनट, मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरा चैट बॉक्स नजर नहीं आ रहा है मुझे। मुझे चैट बॉक्स नजर नहीं आ रहा है। क्या मैं मेरी ये प्रेजेंटेशन को रोक लूँ? शुड आई क्विट द प्रेजेंटेशन? देन आई विल बी एबल टू सी द कंप्लीट स्क्रीन। क्योंकि अभी प्रेजेंटली मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं, और ये ताकि मुझे जो आपका चैट बॉक्स है वो शायद नजर आ जाए। ओके सर, ठीक है, मैं मेरी शेयरिंग स्टॉप करता हूं। हाँ, अभी आप देख रहे हैं मुझे ठीक तरह से? ओके, या आई थिंक आई कैन नाउ सी, या आई कैन नाउ सी द चैट बॉक्स। ओके, चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल है। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं शुरू से करता हूं। अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं जय हिंद जी, आपको भी जय हिंद। मनोज जी बोल रहे हैं भारत माता की जय, प्लीज डू नॉट अलाउ भारत मैप टू बी शोन। आपका मुद्दा ठीक है, लेकिन आप जो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उसके ऊपर ज्यादा लक्ष्य दीजिए। जो मैंने स्ट्रेटेजिक इश्यूज रेज किए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी मैप थोड़ी कमजोर सी है। संजय जी प्लीज म्यूट करो। संजय जी आपका माइक म्यूट करो। बहुत ही अभ्यासपूर्ण व्याख्यान है, गुड लेक्चर है, थैंक यू जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ, यह है राष्ट्रीय सुरक्षा में देश बदल रहा है, हमारे सबके लिए बहुत अच्छा संकेत है। धनंजय चौधरी जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात है। आप यह है, हम जो हमारी लीडरशिप है वो सुरक्षा के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है वो उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि जो लीडरशिप के सामने जो चॉइसेस है ये बहुत ही डिफिकल्ट चॉइसेस है। अभी जैसे कि अगर आप नेवी के हो तो आप बोलेंगे कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर इज नो मोर एंड यूजफुल वेपन। यूएसए एयरक्राफ्ट कैरियर कुड नॉट कीप द हॉर्मुज ओपन। अगर आप एयरफोर्स के हो तो आप बोलेंगे कि हमें राफेल चाहिए और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। नहीं जी, अभी आपको ड्रोन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि बजट का इस्तेमाल है। तो आवर लीडरशिप एट अ नेशनल लेवल हैज अंडरस्टूड दिस। वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर एडिशनल aircraft and additional aircraft carriers. Navy is going in for submarine which has got a better survivability. तो हमारी जो लीडरशिप है ये डेफिनेटली their understanding of national security is quite good, understanding of technology, understanding of affordable technology, और उनके जो डिसीजंस है बाय एंड लार्ज आई मोस्टली एग्री। आई मीन सभी अच्छे डिसीजंस है। सिर्फ मैं जो बांग्लादेशी बॉर्डर है वहाँ पे स्मार्ट फेंस जो लगा रहे हैं उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। इतने साल हो गए हैं फिर भी अगर हम लगा नहीं पा रहे तो ये कुछ गड़बड़ है। मेक इन इंडिया की हम बातचीत करते हैं तो ये फेंस लगाना चाहिए क्योंकि गड़बड़ है वहाँ पे। दूसरा, अग्निवीर के बारे में क्या सवाल था, इसका जवाब मैंने दे दिया है। एक
मुंबई के पूछ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू जी। शिव कनोडिया जी पूछ रहे हैं, विजनरी आइडियाज, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फ्रॉम जन जी इंटेलेक्चुअल। देखिए आपने एक बहुत ही अच्छा ये किया है, इनोवेटिव आइडियाज विच कैन प्रैक्टिकली बी यूज्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हमारी जो ब्रेन पावर है, इसका हमने इस्तेमाल करते हुए हमारी जो सिस्टम है इसे और इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने दिया था, मेक इन इंडिया में नए शस्त्र बन रहे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे केवल 30% जो शस्त्र है वो नए हैं, 70% जो है विंटेज वाले हैं, यानी कि पुराने हैं। तो जो पुराने शस्त्र है इसको आप ज्यादा अच्छा मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते हो? यानी कि राइफल को नाइट विजन डिवाइस दे दो, लाइट मशीन गन की जो रेंज है वो बढ़ाओ, क्योंकि उसने तो रहना ही है। तो यानी कि प्रैक्टिकल आइडियाज भी इंपॉर्टेंट है। डोंट कीप ऑन रनिंग आफ्टर ओनली प्रिसिजन गाइडेड एम्युनिशन, ड्रोन्स। मतलब जस्ट कीपिंग अप विद द ड्रोन्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू आल्सो इंश्योर दैट योर बेसिक वेपन फाइटिंग सिस्टम जो है वो भी जो पुरानी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और आपको शायद पता होना चाहिए, वन कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने मैंने बोला था कि हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है ये एक सक्सेस स्टोरी थी, और चाइनीज सिस्टम कुड नॉट पेनिट्रेट आर, उनके मिसाइल वगैरह हमारे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाए वो। आपको पता है कि वहां पे जो L-60, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस गन्स जो इंडियन आर्मी ने इस्तेमाल की, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज की गन्स है, और इंडियन आर्मी छोड़ के बाकी कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है क्योंकि वो गन अच्छी है, उसका जो बाकी का जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इम्प्रूव कर दिया गया है, उसकी जो बाकी के जो कैलकुलेशंस थे वो कंप्यूटर बेस्ड किए गए हैं, लेकिन द गन इज गुड। जस्ट बिकॉज इट वाज यूज्ड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर डजंट मीन कि यू शुड डिस्कार्ड इट। तो जो हमारी जो इसे हम लीगेसी इक्विपमेंट बोलते हैं, इसका भी प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही आप कहना चाहते थे, क्योंकि इट इज डजंट मीन कि एवरी टाइम यू क्रिएट अ न्यू वेपन, नो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम है इसे भी आजकल की लड़ाई लड़ने के लिए आपने यूज करना चाहिए। एंटी कॉलोनियल माइंडसेट वगैरह, एंटी कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में मैं एक बोलना चाहता हूं कि हमने हमारी खुद की जो मिलिट्री हिस्ट्री है ये ठीक तरह से स्टडी नहीं की हुई है। ये करना चाहिए कि हमारे एक जमाना था कि मैं मराठा रेजिमेंट का हूँ, हमारे लोग जब गूगल मैप नहीं था तो वो अपना अटक पार करके चले गए थे, अटके पार, ठीक है, तो वो कैसे चले गए? आप गूगल पे देखिए, अगर आपने अटके पार जाना तो कितना टाइम लग जाएगा, गूगल बता देगा आपको। तो दे डिड अ वंडरफुल जॉब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट वाज अग्रेसिव लीडरशिप, पीपल हु कुड थिंक अहेड, people created navy when nobody thought of it, say शिवाजी महाराज। हमारा बहुत कुछ चीजें हम हमारे इतिहास से सीख सकते हैं। एक न्यूज भारती पोर्टल नाम का डॉम है, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसके ऊपर अभी एक बुक रिव्यू लिखा था। महादजी सिंधिया, जो मराठा हिस्ट्री जानते हैं उनको महादजी सिंधिया कौन है पता है, नाना फडणवीस के साथ उन्होंने हमारे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद उन्होंने अपने इसको पूरा ऊपर लाया था। तो वो किस प्रकार की लड़ाई लड़ते थे, ये एक अच्छा अभ्यास का विषय है। राणा प्रताप ने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की हल्दीघाट में, वो एक अपना अच्छा विषय है। तो ये जो हमारी तरफ की जो लड़ाई है, इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। यू डोंट हैव टू लर्न, इनफैक्ट शायद आपको पता होना चाहिए। और आपको ये अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो हर साल मेरे ख्याल से 2-3 लाख हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो सीखने जाते हैं यूएसए, यूरोप वगैरह में, क्योंकि उनकी सोच है कि वहाँ पे जो एजुकेशन है ये बहुत अच्छी होगी, मुझे पता नहीं है, मैं तो बाहर जाके सीखा नहीं हूँ, हो सकती है, लेकिन हमारे IIT उनसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन आपको पता है कि पिछले 30 साल से मोस्ट मॉडर्न आर्मीज कम टू NDA फॉर ट्रेनिंग, USA comes here for training, Russia comes here for training, Israel comes here for training, यूरोपियन जो देश है, इंग्लैंड है,
फ्रांस है, जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की महाशक्ति माना जाता है, वो हमारे पास आते हैं। जो अमेरिकन आर्मी जब अफगानिस्तान में काम करती थी, वो हमारे देश में आके हमारे से बातचीत करके थोड़ा सा ट्रेनिंग यहाँ लेके फिर वो अफगानिस्तान में जाती थी। तो बिकॉज इंडियन आर्मी इज केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑन डेजर्ट बॉर्डर्स, हाई एल्टीट्यूड, जंगल टेरेन, सी बॉर्डर्स एक्सेट्रा, तो बाकी देश सोचते हैं कि वी आर अ बैटल हार्डन आर्मी, इसलिए वो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। सो वी कैन टीच अ लॉट ऑफ वॉर फाइटिंग टू द वर्ल्ड ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से यही प्रोग्रेस हमने हमारे मेक इन इंडिया में करना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ये, you don't need to sort of have your own technology. You can improve upon the technology. Okay, you don't need to reinvent a wheel. जो है उसको improve करो ना। अभी कुछ वर्थलेस डिबेट्स चलते हैं हमारी मीडिया में, AI is it art or is it a science or is it useful, will it destroy the society? मैं बोलता हूँ AI का इस्तेमाल जो पॉजिटिवली कर सकते हैं वो करिए, जो नेगेटिव है उसको छोड़ दीजिए। तो टेक्नोलॉजी जो रेडीली अफोर्डेबल है उसका इस्तेमाल करिए। एंड AI इज अ वेरी पावरफुल टूल, स्पेशली फॉर एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारे CCTVs है, लेकिन उसको एनालाइज कोई करता नहीं है उनके फुटेज को। अग्निवीर के बारे में मैंने बोला है, ज्ञानेश जी पूछ रहे हैं एनी डेटा ऑन कैजुअलिटीज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे जो कैजुअलिटीज है, 6 कैजुअलिटीज हमारी हुई है। 5 आर्मी की थी, एक एयरफोर्स की हुई थी। जो सोल्जर्स की कैजुअलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। सिविलियंस की कैजुअलिटी 30-40 के ऊपर है, क्योंकि पुंछ वगैरह एरिया जहाँ पे पाकिस्तान ने ड्रोन्स फायर किए और सिविलियन एरिया के ऊपर कोई एंटी ड्रोन डिफेंसिव सिस्टम नहीं है, तो हमारी कैजुअलिटीज वहाँ पे जो हमारे जो जवान उसमें जो वीरगति प्राप्त हुए वो 6 थे। दैट इज द फैक्ट, और उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दिस वाज, एंड आल्सो रिमेंबर, जब ये गैलेंट्री अवार्ड जो अनाउंस हुए थे, अगर आपने गैलेंट्री अवार्ड पढ़े होंगे तो जो 9 टॉप गैलेंट्री अवार्ड थे, ये सभी उस लोगों को मिला है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया था। ये बेसिकली मिसाइल लॉन्चर्स थे, ड्रोन पायलट्स थे, और 1-2 फाइटर एयरक्राफ्ट के ये लोग थे। इनको जो हमारे हाईएस्ट अवार्ड है, नॉट हाईएस्ट अवार्ड रियली, बट महावीर चक्र वगैरह से उनको सम्मानित किया गया हुआ है। तो कैजुअलिटीज हमारी, जब तक शायद आप हमारी इस कैजुअलिटीज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आप शायद पूछ रहे हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट कितने गिर गए वगैरह। तो मेरा सवाल है हमारे कितने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा, ओके। मेरा सवाल है कि आप हमारे एयरक्राफ्ट कितने गिने, ये आपको बताने की क्या जरूरत है? या आपको मतलब, मेरा सब्जेक्ट ज्ञानेश जी को नहीं, मेरा मतलब है कि आपका जो नुकसान, मतलब किसी भी फौज का जो नुकसान होता है लड़ाई के टाइम पे कभी बताया नहीं जाता। क्योंकि अगर आप बताएं कि हमारा एक राफेल गिर गया पंजाब में, एक राफेल गिर गया समझो जम्मू के अंदर, तो वहां पे दुश्मन एनालाइज कर सकता है कि विच सिस्टम ऑफ हिज प्रूव्ड इफेक्टिव। सो इसलिए आपकी कैजुअलिटीज कितनी हुई है कभी भी बताया नहीं जाता। आपने उल्टा पूछना चाहिए कि पाकिस्तान, हम लोगों को मिसलीड किया जाता है विपक्ष के द्वारा, टीवी डिबेट, वेरियस लोकेशन, हम लोगों के बीच में रोक दिया जाता है कि तुम लोग मोदी भक्त हो, आप लोग बराबर डाटा नहीं बता रहे। सो आई वांट टू नो द फैक्चुअल, दैट्स इट। अच्छा ओके, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ऊपर बहुत सारा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होता है, और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एक बहुत बड़ा शस्त्र है। और मैंने बताया था कि बहुत सारे हस्तक है कि जो हमारे देश में देश के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपने किसको बिलीव करना चाहिए। सिंपल है, यू शुड बिलीव योर गवर्नमेंट, बिलीव योर आर्मी। आर्मी जो बोलेगी वो, उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा, प्लीज बिलीव। और जो स्टेटमेंट आर्मी ने नहीं दिया है उसके बारे में जानकारी लेने की आपको जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी टू मच अबाउट विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष ने पूछना था कि पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं, क्या नूर खान बेस में उनके जो मिसाइल, जो करेक्शन, जो उनके वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स थे, क्या वो डैमेज हो गए हैं, कितने वेपन डैमेज हो गए हैं वगैरह वगैरह। वो सवाल नहीं पूछा उन्होंने, वो पूछना चाहिए था। ओके, चलो अपोजिशन के लिए देखो, ऐसे है, सिंपल बात है, अपोजिशन को आप ब्लॉक कर दो। मैं बात कर देता हूँ कि
ओके चलो एक सुनो, मैं पहले आगे जाता हूँ और 2-3 चीजें इस पे जो आई है वो पहले मैं कवर करता हूँ। पूजा शशि गुप्ता जी ने पूछा, यू सेड इजराइल इज ट्रैप एंड डज नॉट नो व्हेन टू एग्जिट, बट कंसीडरिंग हाउ गल्फ कंट्रीज पाउंस्ड ऑन हिम ऑन हिजबुल्लाह इज टारगेटिंग ऑन देम, ठीक है, इजराइल इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। पूजा जी मैं यही इसे छोड़ देता हूँ, ना इजराइल आपका मानेगा ना मेरा मानेगा। इजराइल की लड़ाई जो 1974 थी, हमने स्टडी की हुई है और आई हैव बीन टू इजराइल। इजराइल के साथ हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हुआ है बिकॉज लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज कम टू अस फ्रॉम इजराइल, बट कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन इजराइल का बहुत ही डिफेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमास 95% इज गॉन, Hezbollah 90% is gone. Iran has got no capacity to now hit. बड़ा स्मार्टली इजराइल ने अमेरिका को भेज दिया ईरान के ऊपर। अमेरिका ईरान लड़ती रहेगी और इजराइल मौज मारता रहेगा, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। हुतीज जो है उनकी कैपेसिटी केवल जो बारबेल मांडेब है या रेड सी है उससे रोकने की है, उसका इजराइल से कोई संबंध नहीं है। इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन गलत है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दे शुड हैव स्टॉप द वॉर बट लीव इट एट। नेतन्याहू शायद पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहा है, उनके खुद के जनरल्स उस पर एग्री नहीं करते, बट छोड़ दीजिए उनको, आपकी और मेरी ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है। बट उल्टी उनकी जो इनोवेटिव एक्शंस है, इजराइल के कुछ डिफेक्ट भी सामने आए हुए। उनका जो आयरन डोम सिस्टम था उसकी वो बहुत कॉस्टली था कंपैरेटिवली। जो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसिव है कंपैरेटिवली मच चीपर, सो वी हैव प्रोटेक्टेड आवर एयर स्पेस इन अ मच चीपर मैनर एज कंपेयर टू इजराइल। ओके, एक मनोज जी ने सवाल पूछा है, कैन चाइना एक्चुअली स्टॉप द रिवर फ्लो टू भारत। अगर आपने तिब्बत का नक्शा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो रिवर हमारे देश में आती है, चाइना से सबसे बड़ी रिवर ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में सैंगपो बोला जाता है और वहाँ पे एक बड़ा माउंटेन है जिसे ग्रेट बेंड बोला जाता है। वहाँ पे रिवर टर्न करती है और टर्न करके वो भारत की तरफ आ जाती है। जो भारत के अंदर वो जो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में केपांगला नाम की जगह है, वहाँ पे उसे वहाँ पे सियांग बोला जाता है। ये सांगपो तिब्बत में भारत में आने के बाद सियांग बनती है और सियांग नदी जब प्लेन्स ऑफ असम में आती है तो वो ब्रह्मपुत्रा बनती है। और सियांग नदी को भारत के अंदर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी नदियां मिलती है, सियोम है, सुबानसिरी है, सरली है, हुरी है, लोहित है वगैरह। तो जब तो चाइना क्या रोक सकता है? चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक सकता है क्या? चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकना उनके लिए एक काफी डिफिकल्ट बात है, क्योंकि रोक के वो करेगा क्या? वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ भेजेगा? क्योंकि चाइना के पास में क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट समझ लो ग्रेट बेंड के ऊपर होगी, लेकिन तिब्बत के ऊपर, तिब्बत में वैसे भी सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट हो रही है, वहां को उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। और दैट एनर्जी बीइंग टेकन टू मेनलैंड चाइना प्रेजेंटली टेक्नोलॉजिकली इज नॉट फिजिबल। Maybe after 10 years or 15 years सोलर एनर्जी जनरेटेड, आपको पता होगा कि राजस्थान में हम सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, आपको पता होना चाहिए मनोज जी। तो ये इसलिए वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, चाइना एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या वो पानी रोक सकता है? पानी रोकने के लिए ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है, केवल जो पानी ब्रह्मपुत्रा बेसिन में आता है भारत के अंदर आने के बाद, केवल 5 से 6% पानी जो है वो हमारे पास एंटर करता है, क्या नाम है, ग्रेट बेंड के पास, यानी कि सियांग नदी में आता है। यानी कि यू कैन से कि जो ब्रह्मपुत्रा का जो वाटर बेसिन है, जो पूरा वाटर बेसिन अगर आप स्टडी करें तो उसमें जस्ट 5-6% ऑफ वाटर एक्चुअली कम्स फ्रॉम चाइना। हम पूरी साल की बात कर रहे हैं, हम मतलब एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो ज्यादा पानी रोक नहीं कर पाएंगे, और इतना पानी रोकने के लिए क्षमता अगर बनाना है तो इट विल बी द लार्जेस्ट और बिगेस्ट एवर डैम इन द वर्ल्ड। आई रिपीट, बिगेस्ट एवर। अभी फिलहाल जो 3 गॉर्जियस डैम जो है वो सबसे बड़ा डैम है, तो इससे भी ये 3 गुना 4 गुना बना जाएगा। अगर आप मतलब मीडिया को फॉलो करते हैं तो चाइनीज साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं कि ये जो डैम अगर वहां पे इतना बड़ा बनता है कि पानी रोकने के लिए, तो इट विल बी अ डिजास्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये चाइना बोल रहा है, और वो चाइना बोलता है कि हम हमारे
पानी को वहां से उठाएंगे एंड विल टेक इट टू द ड्रॉट प्रोन एरियाज। वो उठाने के लिए अगर पानी उठाना है तो उनको ऑलमोस्ट अबाउट 1000 फीट पानी को उठाना पड़ेगा। देन ओनली बाय ग्रेविटी फ्लो इट विल फ्लो टू रिमाइंडर पार्ट ऑफ चाइना। वो उठाना इतना आसान नहीं है। चाइना बोलता है हम टनल कर देंगे, टनल के अंदर से ले जाएंगे। मैं चाइना का वैसे बड़ा सपोर्टर हूँ। ऐसी उल्टी सुल्टी चीजें चाइना करता है and then they get stuck up, you know. CPEC corridor was one of the biggest mistakes China ever made. Belt and Road initiatives were the biggest mistake China ever made. It's a white elephant. China can never come out of it. So all that I can say is that China, can it stop water? Yes, it is not stopped it presently. There are dams on the Sangpo River, but they all are run of the stream dam. Run of the stream मतलब पानी को थोड़ी देर के लिए मतलब डैम की कैपेसिटी होती है, माइनर डैम्स होते हैं और पानी को छोड़ देते हैं बिजली पैदा करने के बाद। अगर वो बड़ा डैम, बहुत बड़ा डैम बनाते हैं जिसकी अभी मैंने बात की, तो इन दैट केस इट कैन स्टॉप वाटर। अगर वो सर्वाइव करे तो वहां पे अर्थक्वेक होगा कि नहीं, कैन इट बिकम अ टारगेट फॉर और मिसाइल सिस्टम वगैरह, तो ये अलग विषय है। लेकिन अगर वो पानी वहां पे रोकता है तो एक ही उस पर गड़बड़ हो सकती है कि अगर अचानक वो पानी को रिलीज करे तो हमारे नीचे वाले एरिया के अंदर फ्लड्स आ सकते हैं। खास तो क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी काफी सारा पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा कैन ओनली बी डैम्ड इन द माउंटेनस एरिया। यू कैन नॉट डैम ब्रह्मपुत्रा और एनी रिवर इनसाइड प्लेन्स एरिया। तो अभी हम जो इसलिए हम अभी वाटर को स्टोरेज करने के लिए जहाँ पे अगर पानी रिलीज होगा तो उसको कुछ देर के लिए शॉक को एब्सॉर्ब करने के लिए छोटे डैम्स बांध रहे हैं सुबानसिरी के ऊपर, लोहित वैली के ऊपर। तो वो होने से जो अचानक फ्लो अगर हमारे रिवर में आ जाता है तो उसे मतलब कम हम कर सकते हैं। मतलब इफ चाइना यूजेस फ्लड्स एज अ वेपन, बट फ्लड हो जाए तो वो कितना देर के लिए होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये मतलब वो कायम का एरिया आपको फ्लड नहीं कर सकते हैं। तो चाइना ने आपका पानी रोकना इतना आसान नहीं है। चाइना जो पानी है वो इरिगेशन के लिए नहीं रोक सकता, और पानी रोकेगा तो ये जो रिवर है इसके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉज है वो है, जिसे बोलते हैं लॉज जो है, जब एक रिवर 2-3 देशों के अंदर से जाती है तो वहां पे उसे राइपेरियन लॉज होते हैं, लोअर राइपेरियन स्टेट्स, अपर राइपेरियन स्टेट्स। तो चाइना अपर राइपेरियन स्टेट है, वहां से रिवर शुरू होती है और जो बाकी नीचे वाले लोग हैं उनका भी रिवर के पानी के ऊपर हक है। दैट इज व्हाट इंटरनेशनल लॉ सेज। तो इसलिए बांग्लादेश के साथ मिलकर हम चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, खासतौर मेकोंग नाम की जो रिवर है वहां पे उसका भी पानी चाइना रोक रहा है। और ये रिवर 3-4 जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, खासतौर थाईलैंड वगैरह, वहां से वियतनाम, वहां से जाती है। तो हमने ये साउथ ईस्ट एशिया के देश को हमारे साथ लेना चाहिए, सो दैट चाइना इफ इट एवर थिंक्स ऑफ डूइंग अ वाटर वॉर अगेंस्ट अस, वी कैन काउंटर देम एट इंटरनेशनल लेवल बाय लीगल मीन्स। चाइना को लीगली काउंटर करना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको पता होगा कि 15 देश इकट्ठे आए हुए हैं और साउथ चाइना में चाइना ने जो एंक्रोचमेंट की थी उसके खिलाफ उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिनेवा ने निर्णय दिया था और चाइना बोलता था कि हम नहीं मानेंगे। तो अभी चाइना के ऊपर काफी 15 देशों का दबाव है, उसमें से कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया के देश है। और हमारे एक विद्वान थे चाणक्य, उन्होंने बोला था कि शत्रु का शत्रु या आपका मित्र होता है। तो चाइना के जो शत्रु है साउथ ईस्ट एशिया के देश, वियतनाम है, उनको ब्रह्मोसम बेच रहे हैं, फिलीपींस है, उसके बाद ताइवान है। ताइवान के साथ हमने कोऑपरेशन करना चाहिए। ताइवान इज अ सुपर पावर एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। आई होप ताइवान की कुछ इंडस्ट्री हमारे पास ट्रांसफर हो रही है, शायद चुपचाप से शायद हो रही है, या होनी चाहिए, क्योंकि दे आर सुपर पावर्स। देन जापान इज आवर बिगेस्ट बेट एज फार एज चाइना इज कंसर्न। देखिए हमने भी हमारी जो देश है उनके साथ मिलिट्री अलायंस बनना चाहिए। अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है भारत में आई थी, शी इज अ कम्प्लीटली एंटी चाइना। जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया हुआ है। जापान हैज अ वेरी पावरफुल नेवी, टेक्नोलॉजिकली इन द मैरीटाइम डोमेन दे आर वेरी गुड। वी नीड टू cooperate with them, and Prime Minister Modi has made a very good this thing with her. Unfortunately हुआ क्या, जापान के जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे
वो उनका डेथ हो गया और उसके बाद जो 3-4 प्राइम मिनिस्टर नए आए वो बहुत वीक थे, वो केवल सर्वाइवल के लिए मतलब काम कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो सकाई टाना सकाई जो आई हुई है ये बहुत ही अच्छी है। तो इन सभी मित्रों के साथ हमने अच्छा कोऑपरेशन करके टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हो, स्पेस के लिए हो, ये करना चाहिए कि ताकि उनके ब्रेन का इस्तेमाल हम कर सके। तो चाइना is not 7 feet tall. China is only 5.5 feet tall. Okay, good question by Mrs. Pooja. पता नहीं क्या था? Difference. Yes, sir. Sir, I really don't want to disturb you, but yes. unfortunately we have to manage discipline regarding time also. Yes, sir. Personally, I would like to keep on hearing you for another 1 hour or another 2 hours. But sorry, sir, we will have to stop here. We will will again request you to come on our platform very soon. And I'm sure all other questions you will be able to satisfy. It is a very very difficult task for me to do this, but I have to. महेश जी मैं एक सेकंड के लिए बीच में इंटरसेप्ट करता हूं। आपने अर्नब गोस्वामी की टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। अर्नब क्या करता है, खुद की माइक सिर्फ ऑन रखता है, बाकी सबकी म्यूट कर देता है, तो इसलिए लोग चिल्लाते रहेंगे लेकिन आपको आवाज एक ही आएगी, वो है अर्नब गोस्वामी की। तो जिसको आप चुप करना चाहते हैं उसका माइक ही बंद कर दो, क्या बात करेगा वो। थैंक यू जी। चलो, एनीवे इफ यू थिंक यू कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 hour, आई विल बी ग्रेटफुल। चलो, ओके, ओवर टू यू महेश जी अगेन। Thank you so much. I request vote of thanks. Hello, sir. Good evening. I thank from bottom of the heart Brigadier Hemant Mahajan ji. And इस सेशन सर थोड़ा सा जरा बड़े जोर से बात करना, आवाज आपकी जरा कम आ रही है, मुझे तो कम से कम। Okay, I'm sure now I'll be audible. Yeah, sir. I'm much Dr. better now, much Srinivasan Iyengar now. And it's like another Mann Ki Baat, especially the question answer session, the thought process coming like a water flow, like anything. Absolutely, we enjoyed the session. Probably we can talk about Global South as a separate topic. You are capable of doing one of the finest session. As an academician, I could able to take many points. And all the government of Maharashtra, government of India, global politics, the topic which was covered by Brigadier Sir is absolutely commendable. Probably that's what tomorrow, if you see, Agni is going to launch at 11:30 by private companies. Hyderabad-based company like Ugram, they are manufacturing AK-47, similar like a product. So India, we are in the right track. Probably this type of session will help us to know more about, because we are learning from horse's mouth. We also heard through newspaper and many things, but hearing from Brigadier, from his experience, especially on this auspicious day of Savarkar ji, you made our day much more valuable to us, sir. And the question answer session we enjoyed, and your PowerPoint slide is absolutely relevant, and each and every slide we enjoyed taking in notes. Probably we wish to hear, as Mahesh ji told exactly, we wish to hear more frequent, and we wish to hear formally more sessions in upcoming months. And I thank all the participants, and especially to our team. Each and everyone put a commendable effort, starting from Mahesh ji and Vijay Prashant ji. Almost today you can see everybody efforts are behind here. I thank each and everyone. Ashavari Papat ma'am, probably we'd like to have your session also one day on Chanakya, and your contributions are always commendable, ma'am. And I would like to take this opportunity to thank everyone, and Akshay for arranging a wonderful session, managing session on time, and for your technology support, and each and everyone, because I have to thank all the 35 people who put an effort to make this session as a successful one. And on behalf of Swadeshi Source Sansthan, from the Delhi team, we like to thank each and everyone for the wonderful contribution. Thank you. We will now have a Kalyan Mantra by Arti ji. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. Shanti. So we'll officially end the meeting. Thanks a lot. Thanks a lot. Do send the recording link if it's recorded. Sir, sir. Thank you. Akshay, please record this session, no? And you can share it later. Yeah, yours is a paid version, so I'm sure it would have been recorded. Yes, sir. We have recorded the session also, and we are also live on YouTube. So both the things I will share in a group, sir. Yeah, please do share so that I'll be able Thank to. you, sir. Thank you. Thank you, Akshay ji. Thank Chalo. you, organizers. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Chalo, okay. Thank you everybody for a patient hearing. Thank you, Anjan. Yes, thank you. Good night, sir. Thank you, Hemant ji, Jai. and Shubhratri. Shubha. धन्यवाद. जय हिंद. Jai. Jai Hind. Dhanyawad.